was an evening. Okay, thank you, Vansika. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So, first of all, I would like to congratulate Nikhil and his team for organizing such a nice workshop, as well as organizing some previous events of course of Triple MUT chapters. As a faculty advisor of this chapter, I would like to welcome all the newly admitted students of BTech first year who are joining this chapter. As you know, this the main aim of CodeSafe Triple MUT chapter is to build a competitive programming culture in our university. So why competitive programming culture is required? As you know, means right now, if you go to any college or any premier institute, the students who are admitting from the first year, they start competitive programming. So if you lack the skills of competitive programming, all of you will certainly find many hindrances throughout your life. So that is why means Nikhil and his team they tried to open a course chapter, and they finally succeeded. They went through various round of interview and some formalities, and finally the course approves the course of Triple MUT chapter. And why, second thing is why competitive programming is needed. So, you know, right now what is happening, if you will see the hiring process of companies, so what they are doing, they are not only seeing your resume, they are trying to find out what is your profile on CodeSafe or any competitive programming website like CodeSafe Top Coder is there, Hackers Rank is there, or Hackers Earth is there. So if you all are aware of all these things, certainly it will benefit. It will benefit you in getting the job. Second thing is that once you are familiar with the competitive programming and you are participating in the various competitive programming challenges, then what will happen? It will help you it will give you the confidence that it will give you confidence that you can solve any type of problem, or you can say any type of challenge. Because you know, अगर आप जैसे जानने की कोशिश करोगे, तो अगर आप सपोज रहे कि कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपके अंदर एक खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि नहीं, हमें अगर कोई प्रॉब्लम दी जाएगी तो उस प्रॉब्लम को हम सक्सेसफुली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़रूरी है। और जितने भी हमारे मतलब न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं, आइदर CS के, IT के, या किसी भी अदर ब्रांच के, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर से जुड़िए आप लोग, और इस चैप्टर के जितने भी बेनिफिट्स हैं मोस्टली आप उसको मतलब बेनिफिट्स को एक तरह से यूज करिए। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग मतलब कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करोगे, तो कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सबसे अच्छी बात क्या है कि इंटरेस्टिंग होती है। तो चूंकि आप वेरियस मतलब चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करोगे, आपको रैंक दिखेगा कि आप कितनी, आपकी रैंक क्या है, और साथ साथ आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग क्या है। तो इससे आपको एक मोरल बूस्ट होगा कि नहीं, हमें भी कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आती है और हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से यही है कि अभी जितने लोग जुड़े हैं वो तो जुड़े ही, साथ साथ जो अदर भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहें कि नहीं, इस चैप्टर से जुड़ते रहें। और जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होगा तो कोर्सेप आपको कुछ गिफ्ट, कुछ आपको प्राइज वगैरह भी देगा। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो अच्छी बात क्या होगी, हमारे जो चैप्टर है उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, ठीक है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक तरह से यूजर्स होंगे। तो बेटर ये है कि आप लोग इसको यूज़ करते रहिए। अगर कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का अगर ट्रिपल MUT का हिस्ट्री देखेंगे तो क्या था कि स्टार्टिंग में जब मैंने इस ज्वाइन किया था 2016 में इस यूनिवर्सिटी को, तो क्या था कि यहाँ के बच्चे मोस्टली उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सबसे पहले एक बार मैंने एक ऐसे ही क्लास ले रहा था, तो कुछ बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या ACM ICPC के बारे में जानते हैं? तो कोई नहीं जानता था ACM ICPC क्या होता है। तो ACM ICPC क्या है कि एक तरह से कोडिंग इवेंट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, बहुत ही फेमस इवेंट है, और इसमें जितने भी टॉप कोडर्स होते हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो 16 या 17 में पहली टीम हम लोग भी पार्टिसिपेट की थी ACM ICPC में, और एक रीजन से पार्टिसिपेट किए थे हम लोग, और फिर उस रीजन से हम लोग ऑन साइट राउंड में भी गए थे। सिमिलरली जैसे जैसे क्या हुआ कि देखा जाए कि मतलब बच्चे जैसे जैसे फेमिलियर होते गए सारी चीज़ों से, तो डे बाय डे अगर देखा जाए पिछले साल ACM ICPC में पार्टिसिपेशन जो हमारे यूनिवर्सिटी से था, तो लगभग 11 टीमें पार्टिसिपेट की थी, और हर एक रीजन से हमारे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे
सब में ऑन साइट राउंड में गए थे। तो एक बड़ी अचीवमेंट है कि मतलब कि एटलीस्ट हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं ये कोडिंग कल्चर एक डेवलप किए हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और चूंकि अगर आप प्लेसमेंट के सिनेरियो भी देखेंगे तो देखेंगे डे बाय डे मतलब इम्प्रूव होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता, अगर आप देखो कॉलेज पे ही आप डिपेंडेंट हो कि नहीं प्लेसमेंट हमारा कॉलेज के बेसिस पर हो, कॉलेज में जो कंपनी आती हैं ऑन कैंपस हो, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि कॉलेज तो नो डाउट कि अपना ट्राई करता है कि कंपनी जाएँ ऑन कैंपस के लिए, बट इन केस अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो आप ऑफ कैंपस भी जॉब पा सकते हो। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? तो अगर आप करोगे तो नो डाउट इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और बेटर यही है कि आप जब भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम करिए तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आप किसी भी एनआईटीज या आईआईटीज के बच्चों को देखोगे तो क्या करते हैं वो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स दे स्टार्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। They will create profile and code say HackerSrank, HackerSearch, and they will participate in each and every events of these websites. सो मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करिए, साथ साथ जो आपके जो सीनियर्स हैं जो कल्चर लेके आ रहे हैं उसको आप कल्चर को और आगे बढ़ाइए। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो आपके जूनियर्स आएंगे उनको बेनिफिट मिलेगा और ये ट्रांसफ़र होती रहेगी चीज़ें। तो साथ साथ जो भी आप लर्न करिए या जो भी आप एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए कोई आपने किसी कंपनी के लिए कोई इंटरव्यू दिया कुछ भी दिया तो उसको भी आप शेयर करिए कि क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में किस तरह क्वेश्चन आए थे, कैसे उनको आप सॉल्व मतलब क्या आपका वो वे था सॉल्व करने का, या क्या आपकी थिंकिंग थी, या कैसे हम किसी प्रॉब्लम का और मोर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दे सकते हैं। तो इसको आप जैसे जैसे करते जाओगे नो डाउट आप शेयर करोगे तो नॉलेज शेयर होगी तो कुछ और चीज़ आपको मतलब कुछ चीज़ें और आपको एज एड ऑन मिलेगा, क्योंकि कोई और भी हो सकता है कि उससे बेटर सोल्यूशन जानता हो। तो ये सब चीज़ें आप करते रहेंगे तो नो डाउट इसका बेनिफिट मिलेगा। सो विद दीज वर्ड्स आई एम एंडिंग माई स्पीच। थैंक यू ऑल। Thank you, sir, for your kind words. Now I would like to invite Nikhil Shukla, sir, President of Courtship Triple in UT Chapter, CSC third year, to begin today's training session. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank our faculty advisor, Assistant Professor Rohit Kumar Tiwari sir. सर का काफ़ी सपोर्ट रहा है इस चीज़ में जो हमने शुरू किया है। ये चैप्टर हमने अभी इसी साल शुरू किया है और शुरू से ही सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि रहेगा। तो सर उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू निखिल। Now I would like to welcome you all in this session of introduction to competitive programming, and also we will tell you about coding platforms. So before starting the session, I would like to request you that I hope you will maintain the decorum and you will be patient enough to see throughout the PPT. Okay, so I'm going to share my screen. So Nikhil, can I leave now? Yes sir, you can. Okay, thank you. Thank you, sir. So before starting the session, am I audible? Someone please check. Yes, Yes, sir. Nikhil, you are audible. Okay, so can you see the PPT? Is the PPT visible? Yes, it is Yes, sir. visible. Okay, so before starting the session, I would like to give a brief summary of what we are going to gain from this session. So you can, first of all, I would like to, I will tell you what is the introduction. I will give you a brief introduction of computer science and information technology. After that, I will tell you about the opportunities in software industries and so on. So first of all, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अभी मैं जो भी कंप्यूटर साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेना चाहते हैं। तो इसमें आईटी मैकेनिकल ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग कंप्यूटर साइंस के नहीं हो तो ये सेशन तुम्हारे लिए नहीं है। तो देखो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि थ्रू आउट द कोर्स हम यही सीखते हैं कि जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है, जो उसकी कंप्यूटिंग एबिलिटी है, जो कि तुम सब जानते होगे कि ह्यूमन से बहुत ज़्यादा है। तो पूरे थ्रू आउट द सिलेबस हम यही सीखते हैं कि कैसे उस एबिलिटीज़ को यूज़ किया जाए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एज यू कैन सी इट इज़ रिटन दैट स्टडी ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग, इट ऑल्सो इंक्लूड्स हार्डवेयर एंड
software and their uses for processing information, and there are various fundamental subjects. तो जैसे जैसे हमारी मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि तुम्हें शुरू में प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, फिर तुम्हें सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो उसके बाद तुम्हें ऊप्स कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं जो कि प्रोग्राम को लिखने का एक पैराडाइम है, ठीक है। उसके बाद तुम जानते हो डिजिटल लॉजिक पढ़ते हो हर सेमेस्टर में। तो ये जितने भी फंडामेंटल चीज़ें हैं पहले बहुत बेसिक थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है, इन चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसलिए धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की नीड ज़्यादा हो रही है। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि बीटेक के बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारे रोल होते हैं। जैसे यू कैन बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू कैन बी अ फुल स्टैक डेवलपर, यू कैन बी अ डेटा साइंटिस्ट, यू कैन बी अ डेटा एनालिस्ट एंड मच मोर। सो देखो यार, कुछ भी करने से पहले मतलब इन सारी चीज़ों को परस्यू करने से पहले तुम्हें जो भी तुम्हारा फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उनको तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे शुरू से ही मशीन लर्निंग में जाने लगते हैं, उनको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब तक तुम फंडामेंटल्स नहीं जानोगे कंप्यूटर के, तब तक तुम ये सब चीज़ें हो सकता है तुम थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर पाओ, लेकिन बहुत डीप में तुम कभी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि तुम लोग पहले अपनी प्रोग्रामिंग पे ध्यान दो, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ठीक है। तो देखो यार, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आर नथिंग बट द वे ऑफ memory allocations and how to use that memory. Okay, so it is very helpful in solving real world problems that takes month that can be solved with the problem which take months to solve can be solved in minutes. I will also give you a real world example after this. So क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम डीएसए पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारा जो कोड होता है वो और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमने बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐप्स होते हैं ऐसे होते हैं जो हैंग हो जाते हैं, जो बहुत स्लो होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी ऐप्स होते हैं जो बहुत ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। जैसे गूगल के कुछ ऐप्स हैं, जैसे जो अभी हम ऐप यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि जो जिसने उसका कोडिंग किया है उसको कितनी नॉलेज है एल्गोरिदम्स की, कितना उसका प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है। तो जितना ज़्यादा प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होगी उतना अच्छा वो कोड लिख पाएगा, उतना एफिशिएंट उसका कोड रहेगा। और जितने भी टेक्निकल हायरिंग होती है, चाहे वो तुम्हारी गूगल हो, इवन तुम्हारी जो आजकल टीसीएस सर्विस बेस्ड कंपनीज की जो प्लेसमेंट्स हो रही है, उसमें पहले राउंड में तुम्हारा सिर्फ एक ही चीज़ टेस्ट करते हैं, जो है तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम। तो तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये कंप्यूटर साइंस का कोर है, क्योंकि आगे जाके तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ोगे, डीबीएमएस पढ़ोगे, उन सब में ही तुम्हारा कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, कोई ना कोई एल्गोरिदम लगेगा, जो भी सॉल्यूशंस इन्वेंट हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। तो जैसा मैंने बोला कि जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम है उससे हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि देयर इज अ टेलीकॉम कंपनी व्हिच हैज़ टू फेच द पोस्टल एड्रेस डिटेल्स फ्रॉम द आधार कार्ड एसोसिएटेड विद ईच सिम कार्ड। तो इसको कुछ ऐसे समझो कि कोई एक टेलीकॉम कंपनी है, फॉर एग्जांपल जियो है, ठीक। तो तुम जानते हो कि हर सिम कार्ड से एक आधार कार्ड जरूर लिंक्ड होता है। अब मान लो कि जियो को क्या करना है कि सारे आधार कार्ड से उनका पोस्टल एड्रेस निकालना है। तो जैसे देखो, तुम ये मान लो कि सिम 1 के साथ ये आधार कार्ड लिंक है, सिम 2 के साथ ये आधार कार्ड लिंक है, सिम 3 के साथ ये है। तो इसका एक डेटा जियो वालों के पास है और आधार कार्ड का डेटा तुम्हारा जो तुम्हारी गवर्नमेंट है उसके पास है। तो करना ये है कि तुम्हें हर सिम कार्ड के लिए उसका पोस्टल एड्रेस निकालना है। तो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा पहला सिम कार्ड है, इससे जुड़ा हुआ एक आधार कार्ड है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि इन सारे आधार कार्ड में उनको ढूंढना है कि कौन सा जो आधार कार्ड है उसका नंबर इससे मैच कर रहा है। तो अगर इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो मान लो कि अगर 10 टू द पावर 9 आधार कार्ड है और 10 टू द पावर 9 सिम कार्ड्स हैं, तो क्या होगा कि एक सिम कार्ड के लिए तुम्हें 10 टू द पावर 9 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। और
इसी तरह से 10 to the power 9 सिम कार्ड्स के लिए तुम्हें 10 to the power 18 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो इसके पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो कंप्यूटर होता है वो 1 सेकंड में सिर्फ 10 to the power 9 ऑपरेशंस कर सकता है। तो मान लो कि इस काम को करने के लिए हमें 10 to the power 18 ऑपरेशंस लग रहे थे। तो अगर हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा 31.7 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ को अगर तुम ऐसे करोगे कि जो डेटा है अगर वो तुम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो और क्या करो कि एक बाइनरी सर्च नाम का एल्गोरिदम होता है उसको लगा दो, तो क्या होगा कि हर सिम कार्ड के लिए तुम्हें सिर्फ 30 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो अगर अब तुम इस चीज़ के लिए जो टाइम लगेगा वो निकालोगे तो वो सिर्फ कुछ सेकेंड्स होगा। तो तुम देख पा रहे हो कि सिर्फ छोटे से एल्गोरिदम से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ना। तो इससे यही फ़ायदा है कि जैसे अभी नॉर्मल तरीके से अगर कोई कर रहा था तो 31.7 ईयर्स लग रहे थे, लेकिन वही चीज़ बाइनरी सर्च से करने पे कुछ सेकंड लगे, सिर्फ 30 सेकंड्स लगे। तो इसीलिए जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो दैट इज़ व्हाट प्रोग्रामर्स डू, दे सॉल्व इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बाय डिवाइजिंग एल्गोरिदम्स एंड मेक आवर कंप्यूटर डू दैट फॉर अस। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि उसकी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को तुम कैसे यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। नाउ व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? तो देखो यार, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यू कैन ऑल्सो टेक इट एज अ माइंड स्पोर्ट। ओके, सो क्या होता है कि बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं तुम्हारे, जैसे तुम्हारा कोडशेफ है और तुम्हारा कोडफोर्सेस है, हैकर रैंक है। तो उस पर डेली कॉन्टेस्ट होते रहते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर होते हैं वो उनके सामने कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको उस प्रॉब्लम को सर्टेन टाइम लिमिट में करना होता है। जो जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर देता है उसकी रैंकिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। अभी मैं इतनी देर से मतलब प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है? जैसे याद करो कि तुमने स्कूल में मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स की होंगी। तो क्या होता था कि मैथ्स में हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स दी होती थी और हम उसको पढ़ते थे, उसको समराइज़ करते थे, उसको एक छोटे से मैथमेटिकल फार्मूले में कन्वर्ट कर देते थे। तो क्या होता था कि उसके बाद हम जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है मैथ्स में उसको हम लगा के आंसर निकाल देते थे। तो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी कुछ ऐसे ही होती है। तुम्हें एक स्टोरी दी होगी, तुम्हें उसको समराइज करके पहले उसको एक समझना होगा कि ये प्रोग्रामिंग में कौन सी प्रॉब्लम है ये। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हें बोला हो कि तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं और तुम्हें उन 100 बच्चों के हाइट का डेटा मिल गया, ठीक है। सब बच्चे की हाइट की एक लिस्ट मिल गई। अब तुम्हें क्या करना है कि उस लिस्ट में से तुम्हें एवरेज हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर तुम इसको प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बदलो तो ये कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे पास एक एरे है 100 लोगों का और उसमें सबकी हाइट दी है। तो तुम्हें यही करना है कि उन सबकी सारे एरे के सारे एलिमेंट्स का सम करके उसको उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ही क्या होता है कि बहुत सारी तुम प्रॉब्लम्स कर सकते हो जाके। अभी मैं वो चीज़ आगे बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो। तो जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ प्रैक्टिस करता है, वो होता है जो कॉन्टेस्ट में जाके पार्टिसिपेट करता है। सिर्फ प्रैक्टिस करने से तुम ये नहीं कह सकते कि तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो। अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या है कि बहुत जैसे तुम्हारी जो जितनी भी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जैसे तुम्हारा गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये सब रिकॉग्नाइज करती हैं। इवन ये खुद का अपना एक प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट करवाते रहते हैं। जैसे फेसबुक का हैकर कप होता है, गूगल का हैश कोड होता है। तो अब ये तो हो गया कि क्या होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब हर चीज़ को करने का यार कुछ रीज़न होता है। तो अब मैं ये बताऊंगा कि तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी क्यों चाहिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने से हमारा लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि तुम आगे जाके जब तुम इंडस्ट्री में जाओगे तो 2 तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिनको सिर्फ बहुत सारी लैंग्वेज आती होगी और उनको हो सकता है डेवलपमेंट आता हो अच्छे से, और एक दूसरे लोग होंगे जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी। तुम अगर वहाँ पे जाके देखोगे तो दोनों लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होंगे। एक जो होगा तुम्हारा वो नॉर्मल
कुछ वेब डेवलपमेंट करेगा या ऐप डेवलपमेंट करेगा, दूसरा जो होगा उसको बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम शुरू से ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें। भले ही मान लो कि किसी का नहीं हो रहा है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाके अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं तो आगे जाके वो बहुत इम्प्रूव कर सकता है। दूसरा ये है कि जितनी भी चीज़ें तुम क्लास में पढ़ते हो, जैसे तुम पढ़ोगे ये सब चीज़ें तुम क्लास में भी पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, एल्गोरिदम्स पढ़ोगे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आएंगी तुम्हारे एग्जाम्स में वो बहुत डायरेक्ट होंगी। मतलब तुमसे सीधे पूछ देगा कि ये क्या होता है, तुम बाइनरी सर्च का प्रोग्राम लिखो। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है उसमें ये होता है कि ना ही तुमको ये एल्गोरिदम तो पता ही होता है, साथ में तुम ये भी देखते हो कि किस प्रॉब्लम में कौन सा एल्गोरिदम लग रहा है, तो तुम उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हो। तुम जितना ज़्यादा कोडिंग करते हो तुम्हारी ये स्किल और इतनी अच्छी होती जाती है। और तीसरा ये है कि तुम एफिशिएंट कोड लिखना सीख जाते हो। देखो जैसे अभी किसी को मान लो कोडिंग करनी आती है, किसी को कोई लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तो वो भी हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जो ज़रूर होता है, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बोलते हैं उसको, लेकिन सारे सोल्यूशन एफिशिएंट नहीं होते। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से क्या होगा कि ना ही तुम कोडिंग करना सीख जाओगे, बल्कि तुम जो कोड लिखोगे वो बहुत एफिशिएंट होगा, वो बहुत छोटा होगा, और जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बहुत कम होगी। और चौथा ये है कि जैसा कि सर ने भी बताया था कि तुम आगे डरोगे नहीं, मतलब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब तुम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे कि तुम इस चीज़ के यूज टू हो जाओगे, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के यूज टू हो जाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं, वो चाहे तुम्हारा मशीन लर्निंग के हायरिंग के लिए हो, चाहे तुम्हारा वो वेब डेवलपमेंट के लिए हो, किसी के लिए भी हो, उसका जो पहला राउंड होता है वो हमेशा ही कोडिंग राउंड होता है। वो बहुत सिमिलर होता है उन कॉन्टेस्ट से जो तुम्हारे कोडिंग प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और जो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सिमिलर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पांचवा ये कि ये जो है मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि तुम्हारा एक प्रोफाइल होता है, उसमें तुम्हारी रेटिंग होती है। जैसा सर ने बताया था कि तुम्हारी एक रैंक होगी, तुम्हारी कुछ वर्ल्ड रैंक होगी, तुम्हारी कुछ कंट्री रैंक होगी। तो इस तरह से मतलब तुम्हें एक रिकग्निशन मिलेगा और तुम अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हो। जैसे तुमने देखा होगा आजकल अनअकैडमी में कुछ एजुकेटर्स हैं, वो हमारे जैसे ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल्स इतनी अच्छी है कि उनको अनअकैडमी वालों ने खुद एजुकेट करने के लिए बुलाया है। उनको जॉब की भी ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही पैसे कमा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जॉब पाना तो ठीक है, गुड सैलरी इज़ ऑल्सो गुड, but the most important thing is that you are an engineer and you should have a purpose of serving to the country. So if you are good at problem solving skills, then you may get chance to work on the most interesting projects. क्योंकि ये होगा कि जो डेवलपर्स होंगे उनसे तुम डिफरेंट होंगे, तो हो सकता है आगे जाके, जैसे कुछ लोग मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट से इसरो में काम करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कुछ दिनों पहले तुमने सुना होगा कि एक ब्लैक होल की इमेज डिस्कवर हुई थी, तो उसका जो प्रोग्राम था वो भी एक मतलब एक कोडर थी, वो एक गर्ल थी, तो उसने लिखा था। तो हो सकता है तुम्हें आगे जाके तुम्हारी स्किल का कोई यूज़ हो सकता है तुम खुद का कुछ वेंचर स्टार्ट कर दो, तुम कुछ ऐसा इन्वेंट कर दो कि आगे जाके उससे सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा हो। तो हो सकता है बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको गेट की तैयारी करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जितने लोग मैंने देखे हैं जो टॉप 100 में होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो साथ में करते ही करते हैं, साथ में गेट की भी तैयारी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ प्लेसमेंट लेना ही एक रीज़न नहीं होना चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने का। तुम ये भी सोच सकते हो कि अगर तुम स्मार्ट हो गए, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो IITs में नहीं जा पाए, लेकिन अभी भी तुम चाहो तो इस गैप को तुम बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। अब ये तो हो गया कि क्या होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और हमें क्यों करना चाहिए। अब जैसे तुम लोग बिगिनर हो तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते होगे कि हम कैसे स्टार्ट करें, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। जो अगर कोई इसको फॉलो कर लेगा तो मतलब हम लोग भी कंफ्यूज हुए थे, हम लोग भी इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन ये जो तुम्हारा तरीका है ये बहुत ही क्यूरेटेड है, बहुत
रिसर्च है, वेल रिसर्च है, और मैंने एलुमनाई से मेंटरशिप के बाद ये डिसाइड हुआ है। तो पहला तो ये है कि तुम्हें सिस्टम से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। जैसे मान लो तुमने लॉजिक तो ढूंढ लिया किसी प्रॉब्लम का, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें उससे कोड करना है, तो जो तुम्हारी किसी भी एक लैंग्वेज पे तुम्हें बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि तुम कोई एक लैंग्वेज सीख लो। अब अकॉर्डिंग टू मी C++ इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज, क्योंकि ये ना ही फास्ट तो होती है, इसका STL सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और ये मैं ही नहीं रिकमेंड कर रहा है, ये वर्ल्ड के टॉप प्रोग्रामर जितने भी हैं लगभग सारे ही C++ में ही कोड करते हैं। अगर तुम अभी C पढ़ रहे हो तो इतना मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। C और C++ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जो फ़र्क होता है वो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के यूज़ में नहीं आता है वो चीज़। जैसे ऊप्स का फ़र्क होता है, ऊप्स कॉन्सेप्ट C++ में होता है लेकिन C में नहीं होता, लेकिन इसका कोई यूज़ तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस होगा कि तुम स्कैनफ की जगह सीन लिखने लगोगे, प्रिंटफ की जगह सी आउट लिखने लगोगे, और कुछ STL सपोर्ट है जो C में नहीं होता, वो तुम्हें C++ में मिल जाएगा। दूसरा ये है कि अब एक बार तुम लैंग्वेज सीख गए तो तुम्हें अपना इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करना होगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपना जो भी तुम लॉजिक सोच रहे हो उसको तुम्हें कोड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे मान लो क्या होगा कि अभी इसके बाद तुम लोग बहुत सारे लोग जाओगे कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, तुम उसमें प्रॉब्लम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, ये अगर मैं ऐसे करूँगा तो हो जाएगा। लेकिन इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कंपाइलेशन एरर आएगा, हो सकता है तुम उसको इम्प्लीमेंट ही ना कर पाओ। मतलब उस चीज़ को इमेजिन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग होंगे भाई जो पहले से पढ़ के आए होंगे, उनके लिए हो सकता है ईजी भी हो। तो उसमें नहीं जाते हैं। इन जनरल तुम्हें ये करना होगा कि तुम हैकर रैंक पे जाके या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग साइट पे जाके बेसिक प्रॉब्लम्स करो। ऐसे प्रॉब्लम्स करो जिसमें कोई एल्गोरिदम नहीं लग रहा, जिसमें बस सिंपल तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे एरे में मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना, एरे का एवरेज निकालना, मीडियन फाइंड आउट करना, एरे को रोटेट करना। तो जब तुम ऐसे प्रॉब्लम्स करोगे तो तुम्हारा जो इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब तुम्हें लैंग्वेज आ गई। दूसरा तुम लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करना सीख गए। अब तुम्हें कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है, लेकिन उसके पहले तुम्हें कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ बेसिक एल्गोरिदम्स है वो ज़रूर आने चाहिए। तो इसके बाद तुम क्या कर सकते हो कि कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एरे हुआ, स्टैक हुआ, सेट हुआ, इन सबको तुम पढ़ सकते हो। इन सब का रिसोर्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, और हो सकता है आगे तुम्हारा सेकेंड ईयर सेशन भी ले इन सब चीज़ों पे। दूसरा तुम्हारा तुम बेसिक कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ सकते हो, जैसे सॉर्टिंग पढ़ सकते हो, सर्चिंग पढ़ सकते हो। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं तो तुम जितने भी तुमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उनको तुम C++ STL से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब STL के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, इसको हम लोग रिसोर्स शेयर कर देंगे या फिर हम लोग सेशन ले लेंगे इस चीज़ पे। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये, तुम जाके गूगल कर सकते हो। अब तुमने क्या किया कि तुमने कोडिंग करना सीख लिया, तुमने लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करना सीख लिया, तुमने थोड़े बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स आ गए। अब तुम compete करना शुरू करो। इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते रहते हैं जो आगे हम लोग बताएंगे अभी सेशन में, तो उसमें जाके तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्या होगा कि तुम्हें लगेगा कि मेरे से एक भी सवाल नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे होंगे जो तुम्हारे जैसे बिगनर्स होंगे। तो बिना रैंक और परफॉर्मेंस का दिमाग में कुछ सोचे तुम कॉन्टेस्ट में compete करना शुरू करो। फिर क्या होगा कि जैसे जैसे तुम compete करोगे वैसे वैसे तुमको पता लगेगा कि अच्छा ये भी एक टेक्निक होती है, अच्छा मुझे ये एल्गोरिदम पढ़ लेना चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसे तुम चीज़ें सीखते जाओगे और इम्प्रूव करते जाओगे। ये भी कर सकते हो कि हर कॉन्टेस्ट के बाद तुम कुछ नई चीज़ें सीखो। जैसे मान लो तुमने 2 प्रॉब्लम्स कर ली, तो तुम तीसरे पे जाओ, उसमें देखो कि क्या लग रहा है, तुम उसमें थोड़ा स्ट्रगल करो, फिर बाद में उसका एडिटोरियल देखो। एडिटोरियल मतलब सॉल्यूशन देखो, ठीक है। पांचवा ये है कि जब तुम धीरे धीरे compete करने लगोगे तो तुम ऐसी स्टेज में आ जाओगे कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हमें आगे क्या सीखना है। तो उस टाइम पे तुम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हो। अब ये है कि देखो इन सब चीज़ों में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी, तो तुम्हें गिव अप नहीं करना है कभी भी।
अब देखो जैसे जैसे बिगिनर्स होते हैं तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो मैं पहले ही बता देता हूँ। क्या होगा कि इन द स्टार्ट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व वेरी बेसिक क्वेश्चंस and it will be very demotivating to the point where you will leave competitive programming, but that's the start of something beautiful. Don't leave it, just hang on. तो मतलब कि शुरू में क्या होगा कि तुम बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स करोगे, क्या पता तुम एक ही प्रॉब्लम में 4-5 बार सबमिट करो लेकिन कंपाइलेशन एरर आ रही है, कभी कभी एक्सेप्ट ही ना हो, लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना है और किसी प्रॉब्लम पे तुम्हें बहुत ज़्यादा देर तक अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सोच सकते हो तब तुम कर सकते हो, मतलब तुम पूरा दिन दे सकते हो उस पर। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि शायद इसमें कुछ ऐसा यूज़ हो रहा हो जो मुझे नहीं आता, तो तुम एडिटोरियल्स देखो। तीसरा ये कि शुरुआत में तुम सीधे कोडशेफ में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अपना इम्प्लीमेंटेशन ठीक करना है, मतलब वो जो दूसरा स्टेप था जिसमें लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करना सीखना था, तो उसके लिए तुम हैकर रैंक और हैकर अर्थ पे जा सकते हो। हैकर अर्थ पे क्या है, तुम्हारा बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर्स के ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, तो तुम उस पे जाके अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। Now I would like to call my classmate Priyanka Rai to continue the session. Hello everyone. Am I audible? Yes, you are audible. All right. I'll be sharing my screen. Please see if it is visible or not. Hello. Yes, it is visible. Is my screen visible? Yes, it is visible. All right. So till now you have seen what competitive programming is and why is it important, right? So now what I will tell you is I will tell you where to start the competitive programming. How can you submit your problem solutions on the problems? So let's begin. Yeah. Um, yeah. As you can see, here are some platforms mentioned where you can do your practice and you can learn from there. First is codeshift.com, codeforces.com, HackerRank, HackerEarth, Spurge, Geeks for Geeks, and there are so many. But now, for now, I will be telling you how to submit problems on few of them. So I will start with codeshift.com. All right, so let's make our first submission on CodeShift. Firstly, you have to go to CodeShift, and then you will see their homepage like this, right? If you are a new user, you will see a tag of new user here, and you will have to register from there. And if you are already an user, then you will just have to log in. As you will have to log in from here, and as I have already logged in, so this is showing my profile here. Is it visible? Someone please tell me, is it visible? Yes, Priyanka, it is visible. Yeah, actually my internet is lagging a bit. Yeah, okay. So this is the home page where you can log in from here, and I am already logged in here, right? So you will see a few tags here: practice and learn, compete, and discuss. In compete, you can find all the contests. The contests are that in which you can improve your rating based on your performance. If you do good in a contest, your rating will improve according to your rank. And here you can see all the contests, future contests, past, and all the running contests. You can participate in them once you learn. And there is practice session. So we will begin with the practice session.
in practice session, you can see some tags: beginner, easy, medium, hard, challenge, and peer. So I'll start with beginner. Yeah. Now you will have to choose some problem to start with, right? You can choose the toughest problem to start with, then you will just quit everything. So what you will do is you will sort according to the submissions. मतलब यहाँ पे देखोगे कि जिसके कम सबमिशन होंगे वो थोड़ी टफ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वी आर नॉट गोइंग टू चूज दैट as this is our first submission, so we will be choosing an easy problem, right? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स की सबसे ज्यादा सबमिशंस हैं. लेट्स चूज add two numbers. Okay, so now you know what a problem statement is, right? You will be given a story and you have to deduce some, you have to deduce some logic from that, and you have to convert that logic into a solution, and then you have to submit that, right? So here's the story given. Problem statement is add two numbers. It says Shivam is the youngest programmer in the world. He is just 12 years old. Shivam is learning programming and today he is writing his first program, right? Then program is very simple. Given two integers a and b, write a program to add these two numbers, right? So I will first summarize this problem statement. It is just saying to take two numbers and add them and give the result, right? So for every problem statement, you will be given an input format and an output format. In input format, here it is given. The first line contains an integer t, the total number of test cases. So what a test case is, how many times you want your program to run. This is what the test case is. Like अगर मैंने तुम्हें कुछ नंबर, एक प्रोग्राम लिखने को दिया दो नंबर के एडिशन का, और तुमने दो नंबर लिए 5 और 2, ठीक, तुमने उन्हें ऐड किया 7 आया और तुमने वो प्रोग्राम सबमिट किया. अब अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम 12 और 15 का एडिशन भी दिखाओ, तो अब तुम्हें प्रोग्राम दोबारा ऐड करना पड़ेगा, दोबारा रन करना पड़ेगा. तो उसकी जगह मैंने तुम्हें कुछ टेस्ट केस का नंबर दे दिया कि ठीक है, तुम मुझे 5 नंबर पे 5 में नंबर्स दूंगी तुम्हें, उन पे तुम ये प्रोग्राम रन करके दिखाओ. तो उसे टेस्ट केस कहते हैं, दैट हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू रन दैट प्रोग्राम. एंड दिस वाज द इनपुट फॉर्मेट दैट there will be the number of test cases given, and for each test case I will give you two integers a and b, right? Then you will be given an output format. In this, for each test case, add a and b and display it in a new line. And there are some constraints given. Constraints are the limit on the input and output. Like here, the constraint is that test case should be between 1 and 1000. You can take the t0. It is given that you have to take t between t will be given between 1 and 1000, right? And you will be given a and b between 0 and 10,000. And you have to design your program keeping these constraints in mind. Now, there's an example given here. First, it's a test case 3. I have to run for test case 3, and a and b are 1, 2 for first test case, 100 and 200 for second test case, and 10 and 40 for third test case. And output format will be like this. For 1 and 2, sum is 3. For 100 and 200, 300. And for 10 and 40, 50. And you can see these all are printed in new lines as mentioned in the output format, right? These all are in new lines. And at the bottom, you will find some time limit and source limit written. Time limit means you have to design your program in such a way that your program runs within this time limit. Like you already know, in this session, it was told to you that in 1 second, 10 to the power 9 operations can be performed. So if you perform more than those operations, then your program will run out of time, and it will give some kind of error. I'll be telling you later that. Okay. And there will be some source limit. Like here, it is 50,000 bytes. Source limit means your program should, the memory taken by your program should be within that limit. All right. So now I'll be writing this program.
and I'll show you how to submit that. Okay. I'm using an ID in my system. You will be provided the link later. Okay, firstly, I have included a header file. You will get to know about this later. I've included an header file, and after that, and programming in C++, you can choose any language according to your preference. All right, so at first I have to take the input of test cases, that is E, and for each test case, I have to take input of two numbers, A and B. So here goes input of two numbers, A and B, and for now, I have to output the sum of A and B, right? All right, so I have written this program. Now I will show you by running. Okay, this is compiled successfully. And now let's say I provide three tests for three test cases. I have to run this 1 and 2. Output is 3. And for 4 and 5, output is 9. Let's say 10 and 20, output is 30. So this is what your program looks like. Its output after running the program. Now I will submit it at CodeChef. Yeah, here you can see a submit icon. You just have to click on that icon, and yeah, here you can choose the language, whichever language you are coding in, you can choose from here. Here's a complete list given. Okay, I'll be here goes my program. And then here in custom input, as I have already taken the input, you can take any input, whatever I had given here. After running, you can take any input here. And now if I run this, if you guys get any problem, you can ask at the end. Yeah, you will see the message of successfully executed, right? Sum of 12 and 13 is 25. Sum of 13 and 14 is 27. It seems good. Now I will submit it from here to check whether my program is correct or not. Well, it seems correct. Yeah, so correct answer means I have successfully executed and within the time and memory limits. And what if I remove an endl from here? Let's check what does it gives. Yeah, if I removed endl, you can see the answer is still same, but the difference is that here that line is escaped, right? There's no line break here. And now if I submit my program, let's check what does it give. Yeah, it shows wrong answer. So you can see even if a line is, if I don't give a single line, then if I don't print my output in the set format, whatever is mentioned format here, that you have to display it in a new line. Okay, so if my output varies from the defined output, so it will be giving us a wrong answer. And what if I forget a semicolon here? What if I do a syntax error? Then you will see a compilation error. All right, so compilation error comes when we do any type of syntactical error or something. So now this was all about submitting your first program, and now I will be telling you the
what are all the outcomes of submissions and what does it mean. So compilation error, as you already saw, it comes when your file is not compiled. Executable file is not created after compilation. There is some failure, then you will get a compilation error. And time limit exceeded, it comes when your program is not running within the defined time. And memory limit exceeded, when your program exceeds the memory limit. And runtime error, it comes when जब किस तरह की प्रॉब्लम होगी, जैसे कोई नॉन जीरो एग्जिट कोड अगर आ जाता है प्रोग्राम में, या कोई एक्सेप्शन आ जाता है, तो फिर रन टाइम एरर होगी. एंड रॉन्ग आंसर तब आएगा जब, जैसा कि मैंने दिखाया कि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी आउटपुट में, तो रॉन्ग आंसर आ गया था. और एक्सेप्टेड मतलब आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, आपने पूरा प्रोग्राम सही लिखा, लॉजिक सही है, सिंटेक्स सही है, और टाइम लिमिट के अंदर आपने रन करा दिया प्रोग्राम, तो ये एक्सेप्ट हो जाते हैं. उसके बाद हाँ, now I will introduce you who we are, what CodeShip College chapter actually is. All right, so CodeShip College chapter are the programming clubs. It is a programming club that is mentored by CodeShip, and it is being led by all the chapter leaders. I'll introduce you to them. And the aim of this club is to spread awareness about competitive programming. Yeah. And the mission of CodeShip College chapter is to empower chapter leaders and to build a robust competitive programming culture, and improve the environment of programming in a campus. And it is also to help the students in improving their skills so they get better. And how are we going to help you? So what we will do for you, we will take regular session for you so that you can learn and you can grow. And after that we will provide some resources for you for self learning. I mean, all the resources which are available for us, we will provide you. And we'll tell you DSA and mathematical concepts. And we will also provide some contest which can be, I mean, conducted by our own team, in which problems will be set by your own team, or maybe some other contest. And we will have a community group where you can discuss any kind of query, any kind of algorithms, or anything. Yeah, one thing very important is that whenever there is some ongoing contest, you can't discuss that question. And yeah, the most important thing is that this is going to be free of cost. You don't need to worry about money. Most of the event will be free of cost. And at last, I will want to introduce you to our team member. First of all, as you saw, our assistant professor Rohit Kumar Tiwari sir from CSE department. He's our faculty advisor. And our team comprises of some members: the president Nikhil Shukla, CP lead Anuranjan Srivastav, Abhishek Kumar Yadav, event head Adarsh Srivastav, media and outreach lead. You just know the names of these members. You may get any kind of help from them. Okay, then there are some core members: Arpit Pandey, Amit Tiwari, Avish Srivastav, Anubhav Mishra, Kavya Agrawal, Priyanka Rai, that's me, Shubham Kushwaha, Sahil Verma, Mayank Gupta. And there are some executive members. They are second years in this second year students. Ujjwal Gupta, Apurva Dikshit, Shubhankar, Ayush, Vanshita, Ayush, Vinay, Yash, Vanshika, Rupal, Ekansh, Anju, and Avinash. You just go through their names, and whenever you need some help, ask them. Right? And you have to, if you have to join our community, there are some links given here. Maybe you already are in these groups, or it will be shared to you. And yeah, so at last we have some activities for you at the end of this session. First, what you have to do is you have to register yourself on these coding websites.
So go and register yourself on CodeShift, CodeForces, HackerRank, and HackerEarth. And you have to make your first submission there, like the one I have shown you here, that CodeShift. You have to make one submission, and you have to send the screenshots of your submission in the Telegram group that is of first year. Don't spam other groups. And this is the Telegram link. And yeah, whatever you send, it should be in a proper format that is given here. That at first you have to write your name, then branch, then year. And yeah, for more fun, you can also send us selfies with your first submission. And the person with the most submission will be given special mention on our community pages. So keep coding and be excited. Thank you. And now I would like to call Nikhil for further session. Please, Nikhila. Yeah, so now if anyone have any doubt, you can ask. Now I'm changing the setting. You can unmute yourself and ask your doubts. First you raise your hand, then speak, okay? Okay, Akash, go. Sir, can we do with mobile? What? No. Competitive programming requires a laptop. You can't code on a phone. If you don't have one, try to buy one. Yes, sir. Anyone else? किसी को भी कोई डाउट हो तो वो अभी पूछ सकता है. Okay, आकृति, go. ग्रुप का जो फर्स्ट ईयर का ग्रुप है. Can we learn 2 or 3 programming languages together, or it will be confusing to learn 2 or 3 languages together? Akriti, first learn a language in which you can practice on some coding platforms. After that, if you want to make projects, you can learn Python, you can learn Java, and you can make projects using those languages. But first, you need to master one language. I think this is a good way. So I have the basic of Java in my 11th and 12th academics, and then now we are being taught C. So whether I should focus on both, or should I leave one and focus on C only? As you told me that you are proficient in Java, so I think you should first learn C language, and then what you can do is that if you are learning C language, you can go to HackerRank and go to their language section, and you can practice problems on C language. It will test your basic syntax and all. And after Yes, that, sir, you I'm switch to doing C++. on HackerRank. Okay, great. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay. Now, Akshat, go. We have to make our ID on Spore. Means HackerRank and Yeah, make ID on every coding platform. Just sign up on that and try to submit each one problem in each platform. okay, sir. Yeah, and if you have any difficulty, if you face any difficulty, you can ask in our Telegram group. You can message there. There is no issue. So where is the link of the Telegram group? Oh, the PPT will be provided. You will get all the links there. It will be provided in all the branches. Okay. Anyone else? Yes, go. So one more doubt. So there is some codes vary from compiler to compiler. So some code give different results on online compiler and different on Turbo C as it. So which to prefer? So see, Turbo has some different configuration. Its compiler is a little different. So I suggest you to switch to either Sublime Text Editor and have a GCC compiler, or you can also install Dave C++. Don't worry, we are going to have a session on how to set up
your computer for competitive programming. All the things will be covered there. And I will also share a Sir, video tutorial on that. okay. So visual code is okay or not? It is okay. Okay, sir. Thank you. Shivendra, That I have studied C++ in my 11th and 12th, and in the college we are being taught C. So, sir, which language should I practice on HackerRank, or either should I move with the pace with the college, the sir being taught in that college in C? I don't think if you are good in C++, you will not face any difficulty in learning C language. So as you should practice on HackerRank With with C, C++, C++. and with sir C language, I think we should. I think I should go with the pace with the sir is teaching in the college. See, that you can learn very easily. There is no problem in that. But for practice, you should practice in C++, Okay, because sir. today or tomorrow you are going to switch to C++. So it is better to start now. Okay, sir. Okay, Thank you. Shubham. With Shubham, Python, will that be for beginners like me? Hello, sir. Python is good for solving basic problems, but as you will go deeper into competitive programming, you will find some problems which you will not be able to solve using Python, or because Python is 5 times slower than C++. But if you are really interested in Python, you can code, because there are some programmers who code in Python. But I think you should study C++. Hello, Nikhil. Thank you, sir. I will study C++. Hello, Nikhil. Am I audible? Yes, you are. That there was a question that whether he should practice in C or C++. I want to add one point to that question. That you should practice competitive programming in C++, but in C you should study concepts like memory allocation and pointers. That will help you to study further code subjects in computer science. Understand? So I will advise you to study pointers, memory allocation, these topics carefully and practice programming. Yes, sir has put out a very good point that, yeah, you should learn pointers and structures and other things. Like you should also learn about file handling. But for competitive programming, you should practice in C++ if you already know it, or if you don't know it, just try and figure out the difference between the two and code in C++. Akshat, you have some doubt? Akshat, Sir, how to make a ID in code force? code forces. Yes, sir. It is very similar to signing up on uh, other social media platform. You just go and fill your details, and if you still face any difficulty, then you can ask us. You can ask any of the second year students. Okay, sir. See, one thing I would like to tell everybody, that if you join our Telegram group, then you will find out that uh, the designation is written after every name. So you can find out who are the executive members, and you can message them directly. Okay.